اور ابھی آپ کو بتائیں کہ لاڑکانہ میں پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کی 15ویں برسی کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہیں اور سیکیورٹی کے لیے 8000 سے زائد اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ برسی کے موقع پر گڑھی خدا بخش بھٹو میں پیپلز پارٹی نے جلسے کا پنڈال تیار کر لیا ہے، جبکہ گڑھی خدا بخش بھٹو، نوڈیرو اور لاڑکانہ میں استقبالیہ کیمپس بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ جلسہ عام کے اطراف میں واک تھرو گیٹس اور CCTV کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں اور سیکیورٹی کے لیے 8000 سے زائد اہلکار فرائض سر انجام دیں گے۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ لاڑکانہ میں پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کی 15ویں برسی کے حوالے سے تیاریاں جو ہیں وہ آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہیں۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں، 8000 سے زائد اہلکار تعینات کیے جا چکے ہیں۔ یوسف شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی یوسف، بتائیے کہاں تک پہنچ گئی تیاریاں؟ جی بالکل، شہید مجتبیٰ بے نظیر بھٹو کی 15ویں برسی منانے کے لیے تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں۔ 8000 سے زائد پولیس اہلکار جو اس تمام تر جلسے کے جو ہے چاروں اطراف جو ہے اس کی سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ اپنے زیر نگرانی دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ میں رینجرز بھی ہے اور اس کے علاوہ مختلف حفاظ ادارے کی جو ہیں وہ بھی اہلکار یہاں اس معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ مختلف دور دراز علاقہ جات سے جو ہے وہ قافلے گڑھی خدا بخش کی جانب رواں دواں ہیں، انتظامات مکمل ہو چکے ہیں اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے جانثاران ان کی بازار پر حاضری دے کر جو پھولوں کی چادری چڑھا رہے ہیں۔ جی یوسف شیخ، آپ کا بہت شکریہ۔ رخ کریں گے نوشہرہ کا، جہاں زمین کا تنازع 5 جانے لے گیا۔ 2 گروپوں کے درمیان جھگڑا خونی تصادم میں تبدیل ہو گیا۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد اسد کی اس رپورٹ میں۔ نوشہرہ کے علاقے تنگی خٹک میں 2 گروپوں کے درمیان خونی تصادم ہو گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 5 افراد جاں بحق اور 2 شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ زمین کے تنازع پر پیش آیا۔ دونوں گروپ آپس میں رشتہ دار ہیں۔ جاں بحق ہونے والے میں نواب عادل، سہیل، واجد علی اور اسرار شامل ہیں۔ ریسکیو نوشہرہ کی میڈیکل ٹیم نے جاں بحق افراد کی میتوں کو نوشہرہ اسپتال منتقل کر دیا، جبکہ 3 افراد کی میتیں قاضی میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دی گئیں۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف کی فضا قائم ہو گئی۔ اور ادھر قاضی احمد میں قومی شاہراہ پر شاہپور جہانیہ کے قریب کار کو بچاتے ہوئے کوچ الٹ گئی۔ حادثے میں مسافر کوچ میں سوار 40 سے زائد مسافر شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں مرد و خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ زخمیوں کو نواب شاہ، شاہپور جہانیہ اور مورو کے اسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اور جیکب آباد کی تحصیل تھل میں نظروا کے قریب دھند کے باعث ٹرک اور مسافر وین میں تصادم ہو گیا۔ حادثے میں وین میں سوار 8 مسافر زخمی ہو گئے۔ ریسکیو رضاکاروں نے تمام مسافروں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ مسافر وین جیکب آباد سے کنڈکوٹ جا رہی تھی۔ رخ کریں گے سرگودا کا، جہاں خوشاب روڈ پر شدید دھند کے بادل چھا گئے ہیں۔ شاہپور کے قریب 2 منی مسافر بسیں آپس میں ٹکرا گئی ہیں۔ حادثے میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔ 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر شاہپور منتقل کر دیا گیا ہے۔ خبر شامل کریں گے ڈیرہ غازی خان کی بستی تمن کھوسا سے، جہاں مسلح ملزمان نے شوہر کے سامنے بیوی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس کے مطابق میاں بیوی تالاب سے پانی بھرنے گئے تھے۔ واقعے کا علم ہونے پر کمانڈنٹ بارڈر ملٹری پولیس اسد چانڈیا نے نوٹس لے لیا۔ ملزمان کے خلاف فوری مقدمہ درج کرنے کے احکامات صادر کر دیے گئے۔ اور راولپنڈی کے علاقے ڈھوک حصوں میں گھر میں گیس لیکیج سے دھماکہ ہو گیا۔ دھماکے کے باعث ماں اور بچہ بری طرح جل گئے۔ اہل خانہ کے مطابق خاتون گیس کا چولہا جلا کر کہیں چلی گئی تھیں۔ صبح چولہا جلانے پر دھماکہ ہو گیا۔ فیصل آباد کے ناصر ٹاؤن میں گھر میں گیس پھٹنے سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو رضاکاروں اور پولیس نے لاشیں مردہ خانے منتقل کر دی۔ پولیس کے مطابق متوفین کوئلہ جلا کر سو رہے تھے۔ اور ادھر حجرہ شاہ مقیم میں لکڑیوں کا زہریلا دھواں 3 جانیں نگل گیا۔ گھر میں سردی سے بچانے کے لیے جلائی گئی لکڑیاں موت کا پیغام بن گئی۔ ریسکیو رضاکاروں نے تمام افراد کو اسپتال منتقل کر دیا۔ اور نواب شاہ کی تحصیل قاضی احمد میں مبینہ پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔ پولیس کے مطابق ڈاکو مہرا پور روڈ پر لوٹ مار میں مصروف تھے۔ گشت پر مامور پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔
और रहीम यार खान में महकमा हाईवे ऑफिस पर महकमा सेहत की जानिब से कब्जे के खिलाफ महकमा हाईवे मुलाजमीन ने एहतजाज शुरू कर दिया। मुलाजमीन का इल्जाम लगाते हुए कहना था कि डिप्टी कमिश्नर ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए हाईवे दफ्तर पर कब्जा करके ताले लगवा दिए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक इंतजामिया ने किसी भी सरकारी इमारत को जबरदस्ती खाली नहीं कराया। शेख जैद अस्पताल में जारी तामीरात के बायस महकमा सेहत का दफ्तर महकमा हाईवे के खाली दफ्तर में मुंतकिल किया गया है। और अब आपको बताएं कि सियालकोट की मातहत अदालत ने 3 ख्वाजा सराओं के कत्ल केस का फैसला सुना दिया। सेशन जज तंजीला असलम ने मुलव्विस मुजरिम को 3 बार सजाए मौत का हुक्म दिया है। मुजरिम अहमद बिलाल ने फायरिंग करके ख्वाजा सरा मजहर, अब्दुल जब्बार और आमिर शहजाद को कत्ल किया था। सेशन जज की तरफ से फैसला सुना दिया गया है और 3 ख्वाजा सराओं के जो कत्ल का मुकदमा है उसका फैसला सुनाया गया है। सियालकोट की मातहत अदालत ने 3 ख्वाजा सराओं के कत्ल केस का फैसला सुना दिया। सेशन जज तंजीला असलम ने मुलव्विस मुजरिम को 3 बार सजाए मौत का हुक्म दे दिया है। बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से। कराची समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क है, जबकि बालाई इलाके और शुमाली मशरकी बलोचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में आ गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 28 दिसंबर को कोयटा, चमन, ज़ियारत, जोब, तुरबत, गवादर, पंजगोर, नौकुंडी, दालबंदीन और चाखी में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। 29 दिसंबर को बालाई पंजाब, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान स्कर्दू में सबसे ज्यादा सर्दी रही, जहां का पारा -12 तक पहुंच गया, जबकि कालाम में दर्ज हरारत -8, ज़ियारत में -7, गिलगित में -6 और क़िल्लात में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और जिक्र हो अगर मौसम का तो साग के बगैर नामुकम्मल है सर्दी। साग और मकई की रोटी दस्तरखान पर मौजूद हो तो खाने का लुत्फ और भी बढ़ जाता है। अहमदपुर शर्किया से आसिफ आवान की रिपोर्ट देखते हैं। पंजाब के शहर अहमदपुर शर्किया में भी बेहद मकबूल सरसों के साग के साथ मकई की रोटी का साग सर्दियों की सौगात में शामिल किया जाता है। साग को खेतों से निकालकर दस्तरखान तक पहुंचने में कई मराहल से गुजरना पड़ता है। सरसों के मोटे मोटे डंडों पहले पत्तों समेत तोड़े जाते हैं और पत्तों समेत इनको बारीक बारीक काटा जाता है। साग की लज्जत बढ़ाने के लिए इसमें मेथी, पालक शामिल करके किसी बड़े बर्तन में लकड़ी की हल्की हल्की आग पर पकाया जाता है और लकड़ी की मंधानी से उसे घोटा जाता है। सारे जरा साग है ना सारा बहुत जटे दी पसंद ही है। ते साग दे नाल डोडा होवे, बाजरी दा, मकई दा, ये बहुत सबको पसंद है। गरीब लोग हैं, ये साड़ी वास्ते बड़ी सहूलत है। साग मखानी होवे नाल। साग को अच्छी तरह पकाने के बाद मक्खन का तिड़का लगाकर मकई की रोटी के साथ टेस्ट किया जाता है। मक्खन का पेड़ा साग का लुत्फ दोबाला कर देता है। सरसों के साग में विटामिन ए और विटामिन डी बाकसरत पाए जाते हैं, जिनसे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। कैमरा टीम के साथ आसिफ अमान, GTV न्यूज़, अहमदपुर शर्किया। ऐसा खाना हो तो मुंह में पानी आ ही जाता है। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हैं। कश्मीर में दिसंबर की कड़ाके की सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। जी हां, शहरियों ने गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लंडा बाजारों का रुख कर लिया है। मजीद जानेंगे धनी बख्श बलोच से। जी धनी बख्श, बताइए। जी बिल्कुल, दिसंबर की मारी तो लोगों ने अपने गर्म कपड़े ख़रीदने के लिए बजाय शहरियों बाज़ार के लंडा बाज़ार की जानिब रुख कर लिया है। यहाँ पर लंडा बाज़ार में लोग कपड़े ख़रीद रहे हैं, गर्म कपड़े। अपनी जो सर्दी है उसकी शिद्दत को कम करने के लिए इस वक्त लंडा बाज़ार में रुख किए हुए हैं। इसी हवाले से मेरे साथ लंडा बाज़ार में जो मौजूद दुकानदार हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस सर्दियों में ख़रीदारी के हवाले से। महंगाई दिन पर दिन उरूज पे, और जो है जो ग्राहक पहले आते थे अभी दिन पर दिन महंगाई हो रहा है, ग्राहक कम आते हैं। जो दुकान में बाज़ार में जो होते थे जो 1500 के, उसकी वजह से ये लोग यहाँ पे आते हैं, कोई 300 कोई 200 गुजारा करते खरीदते, लेकिन महंगाई ज़्यादा है। जी आपने यहाँ पर लंडा बाज़ार के दुकानदार की बातें सुनी, उनका भी यही कहना है कि वो जो महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग लंडा बाज़ार में भी कपड़े ख़रीदने के कासिर हैं। यहाँ के हुक्मरानों से उन्होंने मुतालबा किया कि खुदारा टैक्स कम किए जाएँ ताकि हमारा गुजर सफ़र हो सके। जी। और सिंध में सैलाब के बाद बचने वाली गन्ने की फसल से गुड़ तैयार होने लगा है। तहसील डिग्री में रिवायती तरीके से गन्ने से गुड़ बनाने का काम जारी है। मजीद जानेंगे डिग्री से हमारे नुमाइंदे बशीर शाह से। जी बशीर शाह, बताइए।
जी बिल्कुल, इस वक्त हम डिगरी शहर के बाईपास रोड पे मौजूद हैं, जहां पे गन्ने का जो है वो चिचड़ा लगाया गया है। बिल्कुल ताज़ा जूस निकाल कर यहाँ पे गुड़ जो है वो तैयार किया गया है। तो यहाँ पे छोटी सी एक फैक्ट्री लगी हुई है जिसके मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद हम उनसे बात करेंगे, इस हवाले से वो हमें बताएंगे। हम ये गन्ना खरीदते हैं और ताज़ा रस निकाल के ये इसको पकाते हैं और इसमें से गुड़ बनाते हैं। गुड़ 2-3 अक़साम का बनता है, सादा भी, बादामों वाला भी और गाजर का भी, और सस्ते दाम में बेचते हैं हम। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि यहाँ पे हमने जो है चीनी से सस्ता जो है गुड़ वो हम तैयार करके लोगों को फराहम कर रहे हैं। यहाँ पे क्वालिटी इस तरह की है कि हम जो है खेतों से गन्ना खरीद कर लेकर आते हैं और यहाँ पे तैयार होता है, उसके बाद बगैर केमिकल के जो है वो हम फ़रोख्त करते हैं। और हम लोगों को यही बता रहे हैं कि ये गुड़ अपने घर ले जाएँ, ये बगैर केमिकल के और सेहत के लिए यह बेहतरीन ग़िज़ा है। जी। और अब आपको बताएं कि हैदराबाद में शहरी इत्तेहाद की जानिब से कायदे आज़म का यौम पैदाइश शायान शान तरीके से मनाया गया। बानी पाकिस्तान की सालगिरह का केक भी काटा गया। प्रेटाबाद का मेला चौक पर शहरी इत्तेहाद के तहत कायदे आज़म कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से शहरी इत्तेहाद के सदर साबिक़ रुकन कौमी असम्बली साहिबजादा शब्बीर हुसैन अंसारी, चेयरमैन शहरी इत्तेहाद महमूद कायम खानी, रफ़ीक राजपूत, प्रोफेसर शकील अहमद समेत शहरी इत्तेहाद के दीगर रहनुमाओं ने अपने खिताब में बानी पाकिस्तान को खिराजे तहसीन पेश किया। और उधर आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के स्कूल में रीयूनियन तकरीब यादगार बन गई। 20 साल कबल स्कूल से फारिग होने वाले तलबा और असातिज़ा आपस में घुल मिल गए। अरहम शेख रिपोर्ट कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की तारीख में पहली बार प्राइवेट सेक्टर के तालीमी इदारे की जानिब से री यूनियन फेयरवेल पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें कई बरस से बिछड़े स्कूल के साथियों की एक दूसरे से मुलाकात हुई। ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उनसे आज मिल रहे हैं इतने अरसे बाद। आज 20 साल के बाद इस स्टेज पे इकट्ठे हो रहे हैं और यादगार चीजें तो हमारे स्कूल की बहुत ज्यादा हैं। हमारे टीचर्स ने हमारे साथ बहुत मेहनत की है। पार्टी में आए हुए स्टूडेंट्स और असातिज़ा का कहना था कि एक छत तले बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करने का ख्वाब फिर से पूरा हो गया है। एक रीयूनियन पार्टी तमाम को पुरानी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। वो तमाम कलरफुल मोमेंट्स जो शरारतें थी बचपन की लेके अभी तक उस नान साहब से कान खिंचवाना और दूसरा तीसरा ये सब चीज़ें वो ये ताज़ा हो गया। तकरीब के इख्तिताम पर आने वाले शुरका के लिए यादगार शील्ड्स भी तकसीम की गई, जिस पर शुरका ने स्कूल इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। अरहम शेख, GTV न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डेरा गाजी खान की नाकिस पॉलिसीज अवाम के लिए दर्द-ए-सर बन गई। सड़कों पर जगह जगह सीवरेज का पानी जमा हो गया। सड़कें तालाब और नदी नालों में तब्दील हो गई हैं। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं हसनैन अहमद की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान के मुंतखब नुमाइंदों के शहर को क्लीन एंड ग्रीन करने के दावे धरे के धरे रह गए। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर सिर्फ फोटो सेशन तक नजर आते हैं। इंतजामी की नाअहली की वजह से शहर की सड़कों, स्कूलों, मसाजिद और दीगर मकामात पर सीवरेज से गंदा पानी जमा है। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा और CEO कॉरपोरेशन को कई बार दरख्वास्तें दी गई, लेकिन कोई असर न हुआ। ये जो MP MNA बैठे हैं जो कहते हैं कि ये लिफाफा साफ़ी जो है ना ये मसाइल को उजागर करते हैं, मसाइल होते नहीं हैं। तो आके आप यहाँ हमारे साथ देखें कि यहाँ मसाइल हैं। आपने हर इदारा बर्बाद कर दिया है। डेरा गाजी खान को किस अजाब में यह हुक्मरान जमात ने मुब्तला किया हुआ है। कहाँ MPA है, कहाँ MNA है, कहाँ कमिश्नर है। ये सिर्फ जेमखाना के लिए हैं और जेमखाना में अशराफिया की सिर्फ और सिर्फ अशराफिया की खिदमत कर रहे हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि नाअहल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और CEO कॉरपोरेशन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शहर में सीवरेज के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए ताकि शहरियों को साफ़ सुथरा माहौल मैसर आ सके। और कसूर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आवाम के लिए सरकारी आटे का हुसूल इंतहाई मुश्किल हो गया। शहरी चंद किलो आटे के लिए धक्के खाने पर मजबूर हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं वसीम अख्तर चौधरी। कसूर में महंगाई में पिसी आवाम के लिए सरकारी आटे का हसूल इंतहाई मुश्किल हो गया। ख्वातीन का चादर का तकद्दुस भी पामाल हो गया, मगर सस्ता आटा न मिल सका। लाइन पे लग के आटा लेंगे, दूसरे काम कहाँ से करेंगे। इधर आटा तो मिलता है लेकिन सस्ता मिलता है, दुकानों पे मिलता है, महंगा मिलता है। तो इस वजह से इधर आते हैं, लेकिन सारा दिन लग के लाइन पे आटा लेते हैं। शहरियों का कहना है कि आटे के हसूल के लिए दिहाड़ी भी गंवाई, आटा फिर न मिला। गरीब आदमी किधर जाए। लाइन दे विच लगे आटा लैन वास्ते जनाब, असी आटा सानू मिलता ही नहीं है। इतने 800 बंदा खलोता है, 400 बुढ़ियाँ खलोतियाँ, कोई 400 बंदा खलोता है। एक गड्डी आई है हुणे
ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। कसूर में सस्ते आटे का हसूल मुश्किल हो गया। लाखों की आबादी के लिए हुकूमत के चंद एक स्टॉलों पर कई दिन दिहाड़ी भी गई, आटा भी न मिला। सिर्फ 10 किलो आटे वास्ते, लेकिन सानू मिलदा नहीं पिया। ਜਿਹੜਾ ਮਗਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਗਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ज़ईफुल उमर खातून हो या फिर रोता बिलकता बच्चा, किसी को तरस न आया। जिसको आटा मिल गया वो खुश, जिनको आटा न मिल सका वो एहतजाज करती रह गई। कैमरामैन राशिद अली भट्टी के साथ वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज़, कसूर। और उधर भिटशा में मरकजी चौक चौराहों पर तजावुजात की भरमार हो गई है। रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों का पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं जुम्मन चौहान। भिटशा में इस वक्त तजावुजात की भरमार है। तजावुजात के बायस पैदल चलना दुश्वार हो गया। ट्रैफिक जाम रहने के बाद शहरी और तुलबा मंजिल मकसूद पर देर से पहुंचने लगे। इंतजामिया को कई बार शिकायत की गई मगर कोई अमल ना हो सका। हमारा शहर सूफी शायर बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का शहर है और अकीदतमंद ज़ाहिरीन शहरी जो भी यहाँ पर आते जाते हैं उनको आने जाने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। बच्चे जो स्कूल में जाते हैं उनको भी बहुत आने जाने में बहुत परेशानी होती है। आला हुकाम या कोई भी ऐसी कोई तरतीब नहीं बना रहे कि जो आवाम को या शागिर्दों को तलबा तालबात को परेशानी का सामना ना हो। भिटशा में हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के मज़ार जाने वाली मरकजी शाहरा, तंबूरा चौक, टंडो आदम रोड और शाही बाजार जाना भी दुश्वार हो गया। शहरियों ने तजावुजात के खिलाफ जिले इंतजामिया से कार्रवाई का मुतालबा किया है। और ननकाना साहब में 26 करोड़ रुपए वाटर स्कीम का मंसूबा नाकाम हो गया। शहर भर में टैंकर माफिया ने पंजे गाड़ लिए हैं। शहरी जंग आलू टैंकों वाला पानी पीने पर मजबूर हो गए हैं। तारिक अली राना रिपोर्ट कर रहे हैं। ननकाना साहब में साफ पानी नायाब हो गया। हुकूमत पंजाब की साफ पानी की मुहिम, पंजाब हुकूमत की साफ पानी की स्कीम फ्लॉप हो गई। शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस चुके हैं। ऐसी सूरत में टैंकर माफिया की चांदी हो गई। टैंकर माफिया महंगे दाम नहरी पानी बेचकर फ़ायदा उठाने लगा। हमें जो हुकूमत की तरफ से साफ़ पानी की स्कीम मिली थी जो कि मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो चुकी है अरसा 1 साल से, और हम लोग टैंकर माफिया के हाथों जंग आलूद पानी लेने पे मजबूर हैं। ननकाना की 26 करोड़ वाली स्कीम फ्लॉप होने की वजह से हम इन टैंकर हजरात से बिल्कुल जंग आलूद पानी लेने के लिए मजबूर हैं। हमारी वज़ीर आला पंजाब से यही अपील है कि 26 करोड़ वाली स्कीम ननकाना को दोबारा बहाल किया जाए। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से मुतालबा किया है कि फ्लॉप स्कीम के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसे दोबारा तकमील तक पहुँचाया जाए। और हैदराबाद के इलाके फुलेली परेटाबाद की किस्मत ना बदल सकी। इलाका सीवरेज के पानी में डूबा हुआ है। इलाका मकीनों का कहना है कि वोट मांगने तो सब आ जाते हैं मगर मसाइल को हल कोई नहीं करता। रिपोर्ट कर रहे हैं वहीद राजपूत। साल 2022 के अख्ताम पर भी हैदराबाद के इलाके फुलेली परेटाबाद की किस्मत न बदली। इलाके की गलियों में जमा सीवरेज का पानी, कचरे के ढेर के बाइस इलाका मकीन सख्त अजियत का शिकार हैं। इलाका मकीनों का कहना था वोट मांगने तो सब आ जाते हैं मगर इलाके के मसाइल कोई हल नहीं करता। सीवरेज के जमा पानी के बाइस घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। वोट लेने के लिए घरों में से निकालते हैं, वोट डालो, वोट भी हम देते हैं, शर्म आने की बात है। हाँ, और क्या नाम है, आज तक पानी का इंतजाम नहीं करा। हाँ भाई, इसको इंतजाम करो, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पर इतनी गंदगी हो रही है, कोई मच्छर इतने हो गए हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, घर में लेडीज वगैरह आना जाना बंद हो गया है हमारा, कोई घर का कोई सामान वगैरह नहीं ला सकते हम यहाँ पर। इलाका मकीनों का बल्दिया आला हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटर से मुतालबा है कि फुलेली परेटाबाद में फौरी सफाई का इंतजाम किया जाए। कैमरामैन राहिल शाह के साथ मोहम्मद वहीद राजपूत, GTV न्यूज़, हैदराबाद। रीजनल बुलेटिन में खबरें हैं अभी और भी शामिल करेंगे। इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। और हुजरत शाह मुक़ीम में 335 साल कबल हिंदू कमवा ख़ानदान के घर बाबा भूमन पैदा हुए। बाबा भूमन शाह मुसलमानों, सिखों और हिंदुओं में यकसा मकबूल हो गए। उनके नाम से मंसूब तारीख़ी इमारत अब खस्ता हाल हो चुकी है। मोहम्मद अहमद भट्टी की रिपोर्ट देखिए।
उजरा शाह मुकीम के गांव बैलोलपुर में 335 साल पहले 1687 को हिंदू कंबो खानदान के घर एक लड़का पैदा हुआ, जिसे जवान होने पर 5 पीरों की दुआ और अल्लाह के हुक्म से फैज हासिल हो गया। करामात जाहिर होने पर लोग आपको बाबा बोमन शाह पुकारने लगे। आप हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों में यकसा मकबूल थे। पुआब में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने गाँव कुतुबकोट में आबाद होकर लंगर जारी करने का हुक्म दिया। ये इलाका लखा वल्द आलम वट्टू की जागीर थी, जो लाहौर में सजाए मौत का कैदी था। जागीरदार की मां बख्तावर बेगम बेटे के लिए दुआ कराने बाबा बोमन शाह के पास आई। उन्होंने कहा, तुम्हारा बेटा आ जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरी तपस्या भूमि ये गांव छोड़ना पड़ेगा। खातून ने शर्त मान ली। अगले रोज इसका बेटा रिहा होकर घर पहुंच गया। गांव डेरा बाबा बोमन शाह के नाम से मशहूर हो गया। यहाँ की तारीखी इमारतें किसी दौर में फन्ने तामीर का शाहकार थी, जो अब खस्ता हाल और नशइयों की आमाजगाह बन चुकी हैं। यहाँ सुबह शाम लंगर चलता था। तकसीम हिंद के वक्त कंबो खानदान इंडिया शिफ्ट हो गया। वहाँ उन्होंने असर नौ डेरा बाबा बोमन शाह तमीर कराया, जहाँ इसी तरह लंगर जारी रहता है। लाना मेला भी लगता है। मोहम्मद अहमद भट्टी, GTV न्यूज़, उजरा शाह मुकीम। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा कही और रीजनल बुलेटिन से रबाब असद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।